Welcome friends on YouTube channel Knowledge City with Guruji. Now let's start our today's topic. Today's topic is linear equations and inequalities of two variable for class 10th. Hello friends, how are you? Friends, we are discussing today a new topic linear equations and inequalities. Linear equation एक्चुअली ये आपका बहुत प्रीवियस टॉपिक है, ओल्ड टॉपिक है. 8th क्लास 9th क्लास में स्टडी किया है हमने linear equations. Linear equation, the simple meaning of linear equation is the equation who gives the result as a straight line on the graph paper. When we draw a line on the graph paper, it gives the straight line. And second thing, the power of the variables is here only 1. We will say the degree of the equation is always a 1. The simplest example here, the ax plus by plus c is equals to 0. It is your format of a standard linear equation of a two variables x and y. There are the two variables. As we draw on the graph, we have the two axes, x axis and the y axis. So these x and y represent the axes. Okay. So we are studying here 2D. Actually 2D आपका ये concept है, तो there will be two variables x and y. तो ax plus by plus c equal to 0. It is a simplest general form of your linear equation. Understand? अब हमारा मेन टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिमेंबर एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने हमारे पास में वेरिएबल्स हैं, वी हैव द रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ द इक्वेशंस. उतनी ही हमको नीड होगी किसकी, इक्वेशन की. जितने हमारे पास वेरिएबल्स है उतने ही हमको इक्वेशन की नीड होगी फॉर देयर सॉल्यूशन. ओके, so there are the two variables, so we needed here two equations. So we will write here, suppose first equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Second, the a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So that is a general form of a two linear equation. We will solve that both linear equation to find the value of the x and y. In the previous class 9th standard, you have studied about the solution of linear equation with the elimination method, substitution method, cross multiplication method and graphical method. So same here, only we will study about the graphical method. We will find the value of x and y from the given linear equation with help of a graphical method. Understand? So graphical method पहले भी study किया है. दोबारा हम यहाँ पे explain करते हैं इसको. Suppose we have given linear equation 2x plus 3y equal to 5 and 3x minus y is equal to 2. It is your first equation. Second equation, so simply we have to find the coordinates of the each equation. At least two coordinates we have to find here. कोई भी straight line के लिए 2 points की need होती है. By the joining of 2 points we can draw a straight line. But I advise you always obtain the 3 points for the straight line. ठीक है, 3 points हमको find करने चाहिए, so that mistakes के chances बहुत कम हो जाते हैं, मिस्टेक नहीं होती है. ठीक है, तो हमेशा प्रैक्टिस बनाएंगे. 3 points we have to find for a one linear equation. Suppose from a first we will write here 2x equals to 5 minus 3y and x equals to 5 minus 3y upon 2. Now put the different values of the y here and obtain the resultant. Suppose हमने put y equal to 1. So we write here x equal to 5 minus 3 into 1 3 upon 2 3 minus 5 minus 3 2 2 upon 2 1. Similarly we put here y equal to 3, then x equals to 5. 3 into 3 9 minus 9 upon 2 5 minus 9 minus 4 upon 2 minus the 2. And we will put here, suppose y equal to minus 1. So x equals to 5 minus 1 into y plus the 3 upon 2 5 plus 3 8 upon 2 4. Okay, so we obtained a solution for first equation. Coordinates of x and y, x1 y1 x minus 2 y3 x4 y minus 1. ठीक है, so that is your required table. Now similarly from second we can write here 3x is equals to 2 plus y or x equals to 2 plus y by 3. Same again, put the different values of the y की different value put करेंगे. Let put y equal to 1, so x equals to 2 plus 1 3
3/3 1. Second, put y equal to 4, then x equals to 2 plus 4/3. 2 plus 4 6, 6/3 2. Then put y equal to 7. Okay, so x equals to 2 plus 7/3 9, 9/3 3. Is it clear? So we obtain the value of, again, second linear equation. The coordinates of equation becomes here 1 1 2 4 3 7. Okay, is it clear? Now we will draw the graph of that equation. ठीक है, इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिला के हम एक सिंगल ग्राफ ड्रॉ करेंगे. Students, we will draw these coordinates on the graph paper. On the graph, first of all, your first line x, coordinate 1 and 1. So 1 and 1. Second, minus 2 and 3, x minus 2 and y 3. So minus 2 and 3, like that. ऑलरेडी आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना हमने सीखा प्रीवियस क्लास में. x4 y minus 1, x4 y minus 1 here. So if we join the all 3 points, we will never got a mistake. Write their equation. यहाँ इक्वेशन को आंक कर देंगे हम. ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन था 2x plus 3y is equals to 5, like that. Second, x y 1 1, similarly point 1 1, 2 4, x2 y 4, so that will be required point. 3 and 7, x3, and it will be 7. Now join that. इन पॉइंट्स को क्या कर देते हैं हम, ज्वाइन कर देते हैं. Then we require the second line. हमारे पास में क्या मिल जाएगी, सेकेंड मिल जाएगी. यहाँ इक्वेशन लिख देते हैं 3x minus y equal to 2. Okay, so where the both lines intersect, first line second line are meet at that point, that is the 1 and 1. So 1 and 1 is the solution of the required equations. Okay, जो हमारे दोनों इक्वेशंस थी उनका सॉल्यूशन कहाँ हो गया, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि 1 1. तो इट इज योर मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. इट इज कॉल्ड अ ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, अगर पेयर के मतलब लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल के साथ में उन दोनों का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ के ऊपर, दैट इज हियर, एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन. ओके, सो ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया है, अभी हम रिपीट कर रहे हैं इसी को. ये आपका टॉपिक है चैप्टर में. अब मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि ऑलवेज द टू लाइंस विल बी इंटरसेक्ट और नॉट. क्या दो लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट ही होगी या नहीं होगी, और अदर भी कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है. तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, उसे रिपीट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द टू लाइंस आर गिवन, देयर आर द थ्री कंडीशन पॉसिबल. फर्स्ट, द इंटरसेक्टिंग. फर्स्ट कंडीशन इज द इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइंस, एंड इट मींस लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है, दे विल मीट एट अ पॉइंट. इट मींस हाउ मेनी सॉल्यूशन, दे हैव द यूनिक सॉल्यूशन. उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा. एंड लाइंस आर द कंसिस्टिंग. उनको लाइन को क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टिंग बोलेंगे, यानी कि वो सॉल्यूशन उनका प्रेजेंट है. सेकेंड कंडीशन की लाइंस नेवर मीट, इट मींस लाइंस आर द पैरेलल. लाइंस कैसी है, पैरेलल. लाइंस इस टाइप से है, दे नेवर मीट, वो कभी मीट नहीं होती. सो जब मीट नहीं होती तो उनका सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन. वो कहीं पे भी नहीं मिल रही, तो इट मींस उनमें कोई कॉमन पॉइंट अवेलेबल नहीं है. इट इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंस. उसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंस, क्योंकि वो कोई आंसर नहीं दे रहा, वो सॉल्यूशन नहीं दे रहा है. ठीक है. थर्ड कंडीशन इज हियर, द लाइंस आर द ओवरलैपिंग और कोइंसिडेंट. लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं. इट मींस दे रिपीटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर मार्क है. सो इट मींस हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स, देयर आर द मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, उसे हम बोलेंगे मेनी सॉल्यूशंस. एंड लाइन इज अगेन कंसिस्टिंग. लाइन कैसी होगी हमारी, कंसिस्ट होगी. So these are the three conditions of the two lines. For the any pair of linear equation, we can obtain the any three condition. कोई से भी three condition में एक condition आपको अवेलेबल हो सकती है. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि हम ऑलवेज ही जो है ग्राफ ड्रॉ करके उसे फाइंड करेंगे. इट इज नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर फाइंडिंग द नेचर ऑफ द लाइन्स. लाइन्स का नेचर फाइंड करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने की नीड नहीं है. जस्ट वी कैन चेक देयर रेशियोज ऑफ सॉल्यूशन. हम उनके सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग, रेशियोज के जो कोएफिशिएंट जो रेशियोज है उसके अकॉर्डिंग हम इसको मार्क कर सकते हैं. a1/a2 is not equal to b1/b2. It means the coefficient of x and coefficient of y का जो रेशियो है that will be not equal. वो इक्वल नहीं है. Then we will say lines are the intersecting. लाइंस कैसी हमारे पास में
intersecting है, यानी फर्स्ट कंडीशन दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, दे आर द कंसिस्टिंग एंड लाइन आर द इंटरसेक्टिंग. सेकंड, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, अगर फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल यानी x और y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल है बट इट इज नॉट इक्वल टू थर्ड वन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट से इक्वल नहीं है, देन द लाइंस आर द पैरेलल. पैरेलल का मींस लाइंस आर डोंट हैव अ सॉल्यूशन, दे नेवर मीट एंड लाइंस आर द इनकंसिस्टेंट. थर्ड कंडीशन, the ratios of a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and also equal to c1 upon c2, यानी कि जो आपकी जो लाइंस है उन सभी नंबर्स का रेशियो सेम है, x का, y का एंड कांस्टेंट का. तो लाइंस आर द कोइंसिडेंट. ठीक है, कोइंसिडेंट का मींस दे हैव अ मेनी सॉल्यूशंस, लाइंस आर द कंसिस्टेंट. So that is the three condition to check the nature of the line. कुछ एग्जांपल्स लेके आपको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. सपोज कोई इक्वेशन गिवन है हमारे पास में 2x plus 3y is equals to 5, ठीक है, एंड 4x minus y is equal to 3, like that. अब यहाँ पे a1 upon a2, a1 का मीन्स 2 upon a2 का मीन्स 4, 3 and here -1. So it is clear not equal. Both the ratios are not equal. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. a क्या है, coefficient of x, b is the coefficient of y. So 2 upon 4, a1 upon a2, b 3 upon -1, b1 upon b2. Both are the not equal. So line कैसी होगी हमारे पास में, intersecting. It has a unique solution, single solution. Second example लेते हैं. सपोज आपका गिवन है 3x minus 4y equals to 3, ठीक है, 6x minus 8y is equals to 7. In this case, a1 upon a2, it means 3 upon 6, b1 upon b2, minus 4 upon minus 8, c1 upon c2, 3 upon 7. So 1 upon 6, 3 upon 6, 1 upon 2, minus minus cancel, 1 upon 2 and 3 upon 7. So these are equal and third is not equal. So a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. It is the second condition. Lines are the parallel. When you draw the graph of these two lines, इन दोनों लाइन को ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको लाइन कैसे मिलेगी ग्राफ पर, पैरेलल लाइंस we will obtain here. Okay. Now the third example. Suppose you have given the x minus 4x plus 5. Okay. 2x minus 8x plus 10. Both are equal to 0. In this condition, a1 upon a2 1 by 2, b1 upon b2 minus 4 upon minus 8, c1 upon c2 5 upon 10. So I think all the three ratios are the equal, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. It means lines become your consistent. ठीक है, लाइन कैसी होगी हमारी, कोइंसिडेंट हो गई, कंसिस्टेंस हो गई. इट हैव द मेनी सॉल्यूशन. इनको हम ड्रॉ करेंगे तो एक के ऊपर एक लाइन हमें मिलेगी ग्राफ पर, सिंगल लाइन. ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा, कोइंसिडेंट होगी. तो दैट इज योर condition of nature of line in intersecting, parallel and overlapping. Consider clear. तो ये आपके पास में था solution of linear equation with the help of graphical representation. ग्राफ के थ्रू उसको सॉल्व करना. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है आपके पास में, वो है लीनियर इनइक्वालिटीज. ठीक है, इट इज द इक्वेशन एंड सेकंड इज द इनइक्वालिटीज. वो कैसे सॉल्व करना है, उस नेक्स्ट इज हियर लीनियर इनइक्वालिटीज. तो लीनियर इनइक्वालिटीज, अब ये इनइक्वालिटीज का मीनिंग क्या है, इनइक्वालिटीज का मींस वी आर कंपेयरिंग द स्टेटमेंट्स. हम स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं. इट इज द ग्रेटर देन इक्वल और लेसर देन इक्वल और ग्रेटर देन और लेसर देन. देयर आर द बेसिकली फोर कंपैरिजन सिंबल्स, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेसर देन. सो सपोज वी से हियर कि 8 इज ग्रेटर देन द 6, इट इज द इनइक्वल. हम इनइक्वल है वो, ठीक, कंपेरिजन कर रहे हैं, वहां पे इक्वल का सिंबल नहीं है. Suppose we can write here कि 2x is greater than the 7. It means x is greater than the 7 by 2. अब x 7 by 2 से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है वो, उससे ग्रेटर कुछ भी हो सकता है. ठीक है, वो 7 by 2 से ग्रेटर है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है. That is the inequalities. So same step here we have to compare the inequalities. Suppose given है 2x plus y is greater than equal to 4. और सिंपल सा हमने स्टेटमेंट लिखा है 2x plus y ग्रेटर देन द 4, कि 2x plus y का जो टोटल है वो क्या है, 4 से ग्रेटर या उसके इक्वल. अब ग्रेटर वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8, 9, 10, 100, 200 कुछ भी हो सकता है. तो इट इज नॉट अ परफेक्ट इक्वेशन. ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है.
अब इसका क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, हाउ कैन यू फाइंड द सॉल्यूशन। तो very simple concept, we will convert first inequalities in a equation. Let the 2x plus y is equal to 4. हम क्या करेंगे, उसे अज्यूम कर लेंगे कि वो इक्वेशन है। इनइक्वालिटीज को हटाकर, सिंबल को हटाकर इक्वल मार्क कर देंगे, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट, वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे y is equals to 4 minus 2x, then put the value of x, put x equal to 0, then y equal to 4 minus 2 into 0, 0 4, ठीक है। नेक्स्ट पुट सपोज हियर x इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1, दैट इज 2, ठीक है। नेक्स्ट x इक्वल टू 2, तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू 2, इट इज 0। तो देन नाउ वी विल ऑब्टेन द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स x y। So for the x, if x is 0, y become the 4, x is 1, y 2, x is 2, y 0, and draw that coordinates on your Cartesian plane graph। इसे हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, first x0 y4, x0 y4, that line, x1 y2, x1 y2, x2 y0, x2 y0, join these points, ठीक है। इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये तो एक इक्वेशन का लाइन है, बट वी हैव नॉट गिवन द इक्वेशन, वी हैव गिवन द इनइक्वालिटीज। तो अब इसको शो कैसे करेंगे, हियर 2x प्लस y इज ग्रेटर देन 4, वो उससे ग्रेटर है, ठीक है। कोई एक सिंगल लाइन नहीं है, वो पूरा एक आपका सरफेस है, प्लेन है, ठीक है। अब या तो वो इस लाइन के अबव है या बिलो है, ठीक है, या तो राइट साइड में या उसके लेफ्ट में। अब वो कहाँ है वो हमको चेक करना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, पुट द ओरिजिन इन योर गिवन इनइक्वालिटीज। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x0 y0, सो 2 इंटू 0 प्लस y के प्लेस पे भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 4 से ग्रेटर इक्वल है क्या, 0 4 से ग्रेटर इक्वल है क्या, नहीं है। ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स हो गई। कब, व्हेन योर ओरिजिन्स आर पुट हियर, इट मींस ओरिजिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, ओरिजिन आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो कौन सा है पार्ट, रिमेनिंग ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो दैट इज योर सॉल्यूशन पार्ट। अब अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती, यानी ओरिजिन हमारा ट्रू होता, तो हम ओरिजिन की साइड से शेड करते। अब यहाँ पे आपका फॉल्स है, तो ये ओरिजिन के अवे, ओरिजिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ओरिजिन आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ मेथड है इनइक्वालिटीज को फाइंड करने का। तो दोनों सेम से टॉपिक है, इक्वेशन हो या इनइक्वालिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड देयर कोऑर्डिनेट्स, ड्रॉ ऑन द ग्राफ पेपर। इनइक्वालिटीज के लिए हम उसे कंपेयर करेंगे किससे, ओरिजिन से, 0 0 से। अगर 0 पे ट्रू मिलता है, इट मींस ओरिजिन इज पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, ओरिजिन को शेड कर देंगे। अगर फॉल्स मिलता है तो उसे ओरिजिन के अब जो अब है हम उसे सॉल्व कर देंगे। या फॉल्स है यहाँ पे, इट मींस ओरिजिन को हमने इंक्लूड नहीं किया, उसे अदर पार्ट में हमने शेड कर दिया। तो ये हमारा मेथड है लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज का। तो आई थिंक इट विल बी क्लियर है। नाउ यू कैन स्टार्ट योर असेसमेंट, ठीक है। जो आपके असाइनमेंट्स है, असेसमेंट्स है, उनको कंप्लीट कीजिए, टेस्ट दीजिए, और जो प्रॉब्लम्स हो वो मुझे डिस्कस कीजिए। ओके, गुड बाय।